Now coming to one of the another big question, what about case competitions? कि केस कॉम्पिटिशन ऐसा कहा जाता है कि डीसीपी स्टूडेंट्स कांट पार्टिसिपेट इन केस कॉम्पिटिशन इन गाजियाबाद, दे आर ओपन टू पार्टिसिपेट इन दुबई, and Asta has won a case competition of L'Oreal national winner by. So Asta, who better to take this question? So you can participate in the case competitions. The only catch is if you're in Ghaziabad, then you can't participate in case competitions if they give you an internship. Yeah. Because according to the TC program, you have to get the internship internationally. So that is the only way. Even then you can participate in the case competitions. You just need to reject the internship you get. Yeah. So no one is stopping you from participating, and of course when you come here in Dubai, there are a lot of competitions, case competitions, and they're international, so you get much more exposure. So no one is stopping you from participating, and you can. And just in case, बहुत सारे colleges भी अपने case comps कराते हैं, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा का भी case comps होते हैं, stop करके ऐप है, वो भी बता दिया जाएगा उसके बारे में भी, तो you can register from that also. So mostly case competitions जितने भी होते हैं, mostly you participate on your own यार, तुम वन स्टॉप पे जाके रजिस्टर करते हो, जनरली बहुत कम होता है कि प्लेसमेंट सेल आके तुम्हें दे रही है, it happens, but ऐसा नहीं है कि तुम वहीं से करते हो, you can participate on your own, and whatever case competition people are winning here, they participate on their own, so it's like you, yes you can, and अब केस कॉम्प से याद है, सुयश आप अपना एक्सपीरियंस बताओ जो अभी आपने केस कॉम्प में अभी इंटरनेशनली जो पोर्ट वाला है, पीपीटी वाला सस्टेनेबिलिटी, yeah, so इंटरनेशनली कैसा लगा आपको? That is pretty good. So Akash bhai is talking about a case competition which this guy has brought for us, Placement Cell, and yes, it was a good case competition. You had to pitch around a port, so अभी हम port भी जाने वाले हैं. I had submitted a PPT. Let's see. I hope कि आ जाए. So guys, opportunities हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो केस कॉम्प्स पे आएंगे स्पेसिफिक कंपनी और ब्रांड्स के, वो भी आपके स्पेसिफिक रीजन और उसके लिए भी आ सकते हैं. तो मेक श्योर यू आर वेल अवेयर एंड see your mail and आप उसमें participate करें. It's not about like always about PPO or PPI. It's more about the learning and आप क्या उसमें value add करके क्या सीख सकते हैं केस कॉम से. So now the next question is कि what's like, is Dubai campus little lonely, because यहाँ I have heard that 600 लोग रहते हैं, but when you go to Dubai it's only 200 people, and is it true? Yeah. You'll get so annoyed of those 600 people, I swear to God. Okay, you don't want to be in the campus, you don't want to be in your room, and then wherever you will go, you will see those faces, yeah. And after a certain while, you will forget everyone, and like, hi, my name is Aditi, what's your name? You will ask 50 people that, and then next day you will remember no one. दुबई आने के बाद तुम डीसीपी को भी बहुत अच्छे से जानते हो यार, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर कई लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्हें मैं वहां नहीं जानता था, बट यहाँ आने के बाद उनसे इतनी बॉन्डिंग हो गई, इट्स मोर ऑफ अ फैमिली, तो हो जाता है जब कम लोग होते हैं ना तो बॉन्डिंग भी, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू से लेवरेज दोस 600 पीपल फॉर योर नेटवर्किंग, बिकॉज वो काम आते हैं, यू नेवर नो उनके साथ तुम केस कंपटीशन कर रहे हो एंड सडनली यू गेट कि हाँ यार ये बंदा है जिसके साथ आई हैव दैट ट्यूनिंग, सो यस यू शुड लेवरेज दोस अपॉर्चुनिटी दैट डीसीपी प्रोवाइड्स यू, IMT provides you that 800 people with you. And with I think your batch would be even bigger than us. It won't get lonely. Okay? If it does get lonely, my advice would be go and talk to your batchmates. Yeah, they are as open as you are to talking with them. Okay? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं ऑलरेडी ग्रुप्स फॉर्म हो गए हैं, मैं नहीं जा सकता उस ग्रुप में या मैं नहीं जा सकती उस ग्रुप में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. एवरीवन इज ओपन, हम सबको शुरू से ही नेटवर्किंग सब खुले हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, just go and talk to them, you will not feel lonely. और गाइस एक और पॉइंट है इसी में, so why are you limiting yourself to only the campus itself? I agree campus किसी के लिए जो lonely उसने डाल भी दिया, but Dubai itself is a country like it's इतनी safe country guys कि you can actually go to other campuses जो आसपास में हमारा academic city में है. You can walk up to any one of them, you can talk to them, yes. And this is the time you will feel कि अच्छी networking कैसे करी जाती है. That skill would be developed in you. And आप बस में जाओ, trust me, I have made friends, just professional friends, like just by traveling on a bus. So you can actually network anywhere in Dubai. So it's quite interesting thing. But I will warn you, our campus in Dubai is a little remotely placed. So don't expect to just go out and see people. It does get a little alienated, but yeah, if you find opportunities, look for opportunities, you'll get them. Yes, and
नेक्स्ट क्वेश्चन हम नवंबर तक आ चुके हैं करीब। हाउ इज द मेस फूड इन दुबई, उसका भी एक छोटा सा आंसर कर देते हैं। सो वेजिटेरियंस के लिए कभी कभार इट्स ओके दैट नॉट दैट गुड आई वुड से। नॉन वेजिटेरियंस के लिए काफी सॉर्टेड रहता है यार, उनके लिए तो चिकन काफी sugar coated है। यार तो चिकन तो आते ही रहता है भाई, ये इधर वेजिटेरियंस को पूछो। अच्छा गाइस, यहाँ पे आपको बता देते हैं कितने वेज वाले हैं। आप तो खड़ा veg कर लेते हैं वेज वाले और हम लोग 3 नॉन वेज वाले तीन हैं। नॉन वेज, 2 वेज का पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, तो हाँ। आप हम बता दें। वेज का तो आपको मिल ही गया, नॉन वेज का ठीक है चिकन मिलता है, ऐसा नहीं है चिकन नहीं मिलता है, बट हर बार चिकन अच्छा भी नहीं होता और डेली चिकन आपसे उतना खाया भी नहीं जाएगा। देयर और भी चीजें हाँ। फिश देते हैं बट उतना भी अच्छा नहीं रहता है। इट्स जस्ट लाइक कि यू कैन ईट, you don't want to eat. When you can, you don't want. So there's a difference between that. You'll get that. As Asta said, now you start appreciating that. Yeah. But guys, there comes a trick, shuttle Shyam. Shuttle Shyam. Are you marketing? शटल श्याम वालों देख लो, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ तुम्हारी। भाई शटल श्याम है, विदिन मतलब 400-500 मीटर होगा, ऐसी तगड़ी पनीर बनाता है भाई, मतलब इट्स वेरी गुड एंड नियरली 20 दिरहम्स, मतलब समझ लो 460-480 रुपीस। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। तो अगर 2 दोस्त लोग जा रहे हो, 2 लौंडे, क्या सेक्सी पनीर मिलता है भाई, यू विल एंजॉय। ऐसा नहीं है, हो जाता है सब। और वेज वालों हमारा नंबर ले लेना, पूरा डीएसओ में पता है हाँ। प्योर वेज का खाना कहाँ मिलेगा, चीप कहाँ मिलेगा, सब हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। Just in case हमारा बैच we will be planning something कि जो आप लोग आए उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन का एक शीट आप लोगों के पास मिल जाए पहले से, जो चीज आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। तो we will plan something. Our DSRC मतलब यहाँ की जो स्टूडेंट काउंसिल टीम है वो कुछ सोचेंगे इसके बारे में, so be relaxed for that. And taking this answer as a segue, I would like to say कि भाई Reddit मत पढ़ो। अगर तुम्हें literally information चाहिए ना, मैं सबके LinkedIn डाल दूंगा, just go in LinkedIn, type IIT DCP, you would get anyone, if not 5 of us, anyone in 210 would give you better information than anyone in Reddit भाई। And they will help you. They will help you. And सिर्फ मेरे से मत पूछो या सिर्फ आकाश से मत पूछो, कोई और लोगों से भी पूछो, या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लो, वो ज्यादा आंसर बता पाएंगे तुम्हें। So next question, I think very important one also, कि what's the cost of living in Dubai, मतलब मेरे personal expenses कितने रहेंगे? Anybody would like to say that? Yeah. सबका डिफरेंस Depends. Then you go ahead. ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, टोटली डिपेंड्स कि यार तुम्हारा क्या है, क्या तुमको मेस का खाना, अगर तुम चाहो मेस का खाना दे सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू गो आउटसाइड एक्सप्लोर दुबई, गो डिफरेंट प्लेसेस, यू कैन लिव इन 0 दिरहम। लाइक बिना अमाउंट के तुम आराम से, कॉलेज प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग, 4 टाइम का खाना देता है, फैसिलिटीज देता है, बुक्स है, लाइब्रेरी, ये सब है, तो आपको कुछ अलग से एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। बट हाँ भाई, हमें तो थोड़ा बहुत घूमने का शौक है, पार्टी वार्टी का शौक है, तो थोड़े बहुत एक्सपेंस हो जाते हैं। मेरा पर्सनली 800 दिरहम से 1000 दिरहम का खर्चा है, जिसमें मेरा बाहर जाना, अलग अलग हफ्ते में एक बार एक नया प्लेस घूमना एंड पर्सनल That's शॉपिंग monthly. या मंथली 1000 दिरहम मंथली, जिसमें मेरा शॉपिंग भी हो जाता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गाइस, मैं अपना बताऊं तो लाइक मेजर मेरा क्या है कि फूड के ऊपर एक्सपेंस आता है, ट्रैवल इतना नहीं होता, क्योंकि ट्रैवल प्लेसमेंट के चक्कर में दुबई आधे से ज्यादा घूम चुका हूँ, और वो भी गर्मी में, तो लिटरली टायर्ड ना हूँ। और उसके बाद में मेरा जो खाने का खर्चा होता है, कोशिश करता हूँ डेली का लाइक 20 to 30 दिरहम्स का आएगा, तो मेरा भी कहीं ना कहीं 1000 to 1200 दिरहम्स आई वुड से कि खाने में चला जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हें क्या करना है। तो सेफ बजट फॉर मी आई वुड से कि 700 to 1500 का जो रेंज है, दैट यू कैन टेक इन अकाउंट कि वो उसमें काम हो जाएगा। हो जाता है, इट्स ओके, हो जाता है उतने में। एंड मेनली यहाँ ट्रैवलिंग का कॉस्ट रहता है, तो इफ यू हैव मोल कार्ड देन बस से ट्रैवल कर सकते हो तुम, एंड इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड ग्रुप, नेटवर्किंग फ्रेंड ग्रुप अच्छा है तो भी भाई डिवाइड हो जाता है, इट्स ओके। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट चलता है, उतना चलता है, दुबई है भाई। सो नाउ कमिंग ऑन एक क्वेश्चन कि does Dubai placement cell SCSC offers us short term project? क्या हमें शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं करने को, आकाश भाई? ओके गाइस, तो सबसे पहले तो यूजर्स से पूछ लेते हैं आप लोगों ने उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट जिसने किया है आप अपना एक्सपीरियंस एक बार बता दो। So yes guys, they do bring some short term projects. It was nearly 5-7 short term projects that they brought. बहुत ज़्यादा नहीं, काफी ज्यादा। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, कुछ अनपेड भी होते हैं, काफी हद तक पेड भी होते हैं। इट्स नियरली 1000-1500 दिरहम भी पेड रहते हैं तुमको, तो अच्छे खासे आते हैं। प्लेसमेंट सेल बहुत काम करती है एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास। ओके गाइस, तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट विल हैपन एसेंशियली इज लाइक व्हेन यू विल लैंड इन अक्टूबर, आपका जब यहाँ का ओरिएंटेशन और वो काम खत्म हो जाएगा प्रॉपर, यू विल बी सेटल्ड हियर इन बाय नवंबर मिड तक। उसके बाद में यू विल फील लाइक सम एक्टिविटीज
will start. So we essentially start with the STP in hope that the company also gives you an internship offer and there are opportunities coming your way. And sometimes there will be some specific projects which will have a specific timeline. For example, 2 months or 3 months, that will be a short-term project. But they will be paid heavily. So in that you will be able to learn, adapt and also earn money a bit. So yes, STPs do come in Dubai. And that is why the committee has been formed to make sure that everyone, does not face any kind of a pressure or challenge while finding any internship or a STP on their own. STP का मैं ये भी बोलूँगी like we had this thought कि no it's not paying anything why should we apply for it, don't do that. Yes. Because that will be the moment that creates all the difference. ठीक है, short term project will help you a lot और it will be very easy क्योंकि usually तुम्हें short term projects के लिए office नहीं बुलाया जाता, ठीक है, you do it sitting here. SIP की बहुत हेल्प होती है। या SIP में भी हेल्प होगी, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, दुबई का भी एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे वर्क कल्चर कैसा होता है एंड जस्ट डू द STP, मतलब डोंट बी डिसइंटरेस्टेड अबाउट इट। या डोंट यहाँ पर आने के बाद ना बहुत जो सीजन शुरू होता है नवंबर दिसंबर देन SIP इट्स ऑलवेज द माइंडसेट कि आई हैव टू गेट दिस अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट, एक वो अमाउंट दिखने लग जाता है 3000 4000 अमाउंट पे मत जाना यार, इट्स ऑलवेज अबाउट लर्निंग। तुम ना लर्निंग वाला एटीट्यूड जहाँ पैसे आते हैं ना फिर लर्निंग छूटने लग जाती है। सो ऑलवेज बिलीव इन योर लर्निंग। अगर कोई ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर हु हैव रिजेक्टेड बेटर कंपनीज टू गेट लर्निंग फ्रॉम कंपनीज हु आर पेइंग लेस राइट नाउ बिकॉज़ दे आर द पीपल हु आर एमिंग फॉर द लॉन्गर गेम कि हम भाई इस कंपनी में मुझे इंडिया में प्लेसमेंट लेनी है तो अभी मुझे SIP में भले ही कम पे मिल जाए बट आई वुड एम फॉर दैट। सो ऑलवेज हैव दैट लर्निंग एटीट्यूड हो जाता है। एक और चीज है लाइक एक कंपनी आई थी हमारे करियर फेयर पे, आई वोंट टेक द नेम, अनपेड थी लेकिन उस कंपनी के लिए बहुत बच्चे लाइन पे थे क्योंकि वो कंपनी इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी थी। तो अगर आपको गाजियाबाद में प्लेसमेंट चाहिए वो कंपनी का नाम से ही आपको मिल जाएगा कि ओके इस बंदे ने इस कंपनी में काम किया। तो ये भी बहुत मैटर करता है। एंड जिस भी कंपनी में जाओ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करो या SIP करो ऑलवेज क्रिएट एन इम्पैक्ट देयर बिकॉज शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट तुम्हारे SIP में कन्वर्ट हो सकते हैं, तुम्हारी SIP PPO में कन्वर्ट हो सकती है। इफ नॉट they will give you very good recommendation if you have done hard work for them। and भाई वहाँ का कोई बंदा अगर CEO है या मैनेजर है तो ही लाइफ में कुछ तो उखाड़ा है उसने भाई। so if you get a recommendation from him it's very worth it, बहुत सीखने को मिलता है। और so जनवरी अब दिसंबर तुम्हारा ऐसा निकल जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। देन कम्स जनवरी, यू विल गिव योर एग्जाम्स हियर, टर्म 2 एग्जाम्स एंड ऐसा कुछ खास रहता नहीं है, सॉर्टेड रहता है, क्वेश्चन पेपर से सब कुछ हो जाता है। देन स्टार्ट्स द रियल थिंग, समर इंटर्नशिप्स। फ्रॉम जनवरी इट स्टार्ट्स एंड इट गोज ऑन टिल मे आई वुड से। सो यस आकाश भाई, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। व्हेन डज SIP हैपन, फॉर हाउ लॉन्ग? हमारा फरवरी से चालू होता है, if I'm not wrong, SIP प्रोसेस चलता है जनवरी। ओके जनवरी। So what happens is guys कि आप लोग अपने जो CVs हैं, मैं वो रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग, आपको देखेंगे कि सबसे पहले गाजियाबाद एक टेम्पलेट शूट आउट करेगा आपको, आप उसमें भी चाहे बना के रख सकते हैं बट ऑलवेज हैव अ मास्टर CV रेडी। तो जो एक आपका मास्टर CV रहेगा उसके बाद में जो आपको गाजियाबाद टेम्पलेट होगा उसमें आप फिट करेंगे पहले, बट वो आपको देना नहीं होता है क्योंकि आप दुबई आएंगे। तो दुबई जब आप आएंगे तो यहाँ की जो आपकी प्लेसमेंट टीम होगी, जो आपके बैच में होंगे, हम आपके सीनियर्स जो आपकी हेल्प करेंगे, we will typically verify your CV first। जैसे इस बार का टाइमलाइन था 12th and 13th Feb को हुआ था, तो इन 2 दिन पे हमने आपके CV वेरीफाई किए थे। Once CV verification is done, CV verification प्रोसेस की जो डिटेल्स होंगी वो आपको मेल से कम्युनिकेट होती है कि क्या क्या हमें प्रूफ चाहिए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब आपको पहले से बता दिया जाएगा। उसके बाद में फिर में once you are done with it, then your sign up process starts। एंड CV लॉक हो जाती है CV लॉक हो तो फरवरी का वो जो टाइम रहेगा 14 जैसे आकाश भाई ने बताया, उसके बाद यू कांट डू एनी चेंजेस इन योर CV। तो जो भी करना है करना शुरू कर देना इन गाजियाबाद एंड व्हेन कमिंग टू दुबई, अक्टूबर से शुरू कर देना। आकाश भाई यस, तो उसके बाद में व्हेन यू आर डन विद द CV वेरिफिकेशन, साइन अप आएगा आपको मेल पे फ्लोट हो जाएगा। देन यू नीड टू साइन अप क्योंकि उसके भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो आपके पूरे प्लेसमेंट हैंडबुक में रहेगा। तो गाइस read everything, nothing is like for waste कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, it's just for your own benefit। बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बाद में जाके उनकी दिक्कत आ जाती है। and one more important thing, SIP के बीच में we have something called a leadership talk।
तो उसको भी गाइस आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कई बार जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं, एंगेज करते हैं स्पीकर्स के साथ, तो स्पीकर आपको इंप्रेशन और आपको याद रखते हैं, और एज अ ब्रांड आपका बैच की वैल्यू पता चलती है कि अब आज वो कंपनी आई या नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम इट विल डेफिनेटली कम कि उनको बैच की क्वालिटी पता है। तो उसको भी गाइस सीरियसली लेना, लीडरशिप टॉक्स को, और उसमें भी एंगेज करना। तो एसआईपी की ये टाइमलाइन रहती है। नाउ हमारा मई 15 से एसआईपी सीजन अभी स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट सीजन। बट आकाश भाई ये वाले क्वेश्चंस कि एसआईपी हैपन एंड फॉर हाउ लॉन्ग ये हो गया, एसआईपी हो जाएगी कि नहीं, लाइक गाइस ओके, तो एसआईपी का जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन का रह गया था, टाइमलाइन 2 वीक्स इज मैंडेटरी फ्रॉम कॉलेज, 8 वीक्स का है, बट हम कोशिश करते हैं कि यू गेट 3 मंथ्स का, 12 वीक्स का, सो दैट यू कैन अर्न। नहीं तो 1 महीना अगर किसी का नहीं होता तो दे आर फ्री, दे कैन गो होम जब तक आपका एकेडमिक स्टार्ट नहीं होता है। एंड विल आई गेट प्लेस, वो तो बताओ। एससीएससी आंसर नहीं कर रही है। नहीं गाइस, इसका आंसर सिंपल सा है, यस यू विल गेट प्लेस बिकॉज़ इट्स अ कॉलेज रिस्पांसिबिलिटी, एंड ये आपकी ग्रेड में भी चढ़ेगा, तो डबल रिस्पांसिबिलिटी हमारी ये है आपको प्लेस करने का, सब हो जाएंगे। आज नहीं होंगे, कल होंगे, बस एक चीज याद रखना कि अंधेरा ऐसा नहीं होगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, Yes. कोई ना कोई आपको सपोर्ट मिलेगा कॉलेज के। भाई कंपनीज डू कम, आती ही रहती है कंपनीज, इट जस्ट डजंट स्टॉप। एंड आई आल्सो वांट टू से कि काफी लोग यहाँ पर हम लोग लेट प्लेस हुए थे, सो अभी अपना हौसला मत टूटने देना, डोंट लेट योर दैट थिंग गो अवे कि भाई मैं नहीं हो रहा हूँ, एम आई वर्थ इट और नॉट, बिकॉज यू विल गेट प्लेस। अभी ऐसी ऐसी कंपनीज आ रही है हु इज पेइंग बेटर देन द कंपनीज हु हैव केम बिफोर, सो कंपनीज डू कम, आराम से प्लेस हो जाओगे, बहुत सारी कंपनीज आती है, पेड में ही प्लेस होगे। एंड हमारे बैच में ये सीन है, तुम्हारे बैच में और अच्छा होगा, बिकॉज you will be under the guidance of seniors who have done it, who have nailed the SIP very well. Yes, so और एक प्रो टिप और है गाइस कि एक चीज याद रखना कि कंपनी और तुम्हारा, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल ऑलवेज नील दैट अलाइनमेंट वाला पार्ट। कंपनी की अलाइनमेंट और प्रेफरेंस होती है कुछ, तो इट्स नॉट अबाउट योर कैलिबर, इट्स जस्ट अबाउट द अलाइनमेंट एट दैट पॉइंट। So it may happen in month 1, it may happen in month 2, but होगा जरूर, क्योंकि companies will keep on coming जब तक कि एक बच्चा प्लेस नहीं हो जाता, तो that you need to take care of। So उस चीज को एंजाइटी और उस एंगल से नहीं सोचना है कि मेरे कैलिबर पे डाउट मत करना, अगर तुम डीसीबी में आ रहे हो you have some caliber। so आकाश भाई एक और क्वेश्चन Yes. SIP से, let's talk some numbers कि what is the average and highest stipend in SIP that I can get, or what's the average for this batch? ओके गाइस, सो फॉर द ऑफिशियल रीजन, लाइक जो नंबर्स होंगे वो आप लोग इंटरिम रिपोर्ट अभी हम आएगी हमारे आने वाली इस है, batch की बात की। इस बैच की अभी बाकी है, तो इस बैच का आप देख सकते हैं, बाकी सबका डला हुआ है, बट दैट आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस कि जो पिछले बैच के स्टैट्स थे इंटरिम वाले और इस वाले स्टैट्स में फर्क है, और जो आपको फर्क पॉजिटिव जो है आप देख सकते हो, और खुद भी अज्यूम कर सकते हो कि जब आप लोग ऑनबोर्ड करोगे तो इट विल बी मच बेटर देन दैट गिवन ऑन द हिस्टोरिक ट्रेंड्स। या तो नंबर वाले जो चीजें अभी हमें इसको पास करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स में अभी आने वाला है ये। Yeah, but like companies nearly pay 4,000 dirhams also, highest वहाँ तक भी आती है 3,500, 2,000 is nearly average तक भी आती है। Companies do come which pay okay यार, अच्छा ही देती है। SIP में उतना कुछ रखा भी नहीं है, पे मत सोचते रहना guys, it's हाँ, always learning learning। में। हाँ, you should not focus on the pay because 1,500 and 2,000 dirham is nearly 12,000 rupees का difference। Don't take your SIP based on that 12,000, you should always focus on the long term goal, क्योंकि वहाँ जाके crack करना है। Now Because they Ghaziabad mein they won't ask you about your pay, they will ask you about your role and Role and responsibility, exactly. so that is more important.